committees in Afghanistan, they are not formal associations. They are mentioned in the Ministry of Education's policy for community-based education, but they are not formally registered in the Ministry of Justice. Right now, in the structure of the school management committees, there are 5 to 7 members. Among these 5 to 7 members, there is one teacher, community elders, imam of the mosque, the person who lead the prayers, and the rest are parents. One SMC is supporting one community-based school. One community-based school may cover several villages, but it is registered as one CB or one community-based school in the Ministry of Education. There are, and the process is that head of the school management committee and secretary of the school management committee should be elected through proper elections, and that is taking place in most of the areas. Main responsibilities of the school management committees are allocating land, learning space for the children. In Afghanistan, this is a problem. While school management committees have been very successful in this, wherever we have a community-based school, school management committee has provided the learning space. And when we are constructing a school building, they are donating that land for the school management committees. And also these committees are ensuring attendance of children in schools and campaigning for girls' education, for rights of girls to education and for rights of children with disabilities to education. Also, they are campaigning for they are doing advocacy for registration of the CB schools. We will just present these challenges. And there are challenges regarding the school management committees in Afghanistan as well. The first thing is that they are informal status. Because of being informal, an NGO or a donor cannot give funds to these school management committees. This is what we are struggling for to make them registered. Lower literacy rate among the school management committees, only 25% of the members are literate. So most of them are illiterate, and when they are monitoring the schools, they face problems. Insufficient women's representation and youth representation in the school management committees is one of the problems. In Afghanistan, you see that is a male-dominant community, so women are not allowed to be beside the male, and especially they are not given a right to be a part of the decision making. Fair and transparent elections. Usually warlords, landlords, they are selecting themselves as head of the SMC, as secretary of the SMC. So fair and transparent elections are hard to take place. Regular meetings, because most of the members are farmers and they are very busy in their daily business, so it is hard for them to get together and have regular meetings. Also, there are challenges regarding planning and reporting of the works that is done by the school management committees. Swedish committee is working with these committees, and we are training them in school monitoring. We are linking them with the Ministry of Education established literacy centers, and also we are supporting their election systems, and we are training them how to advocate for rights of children to education. Very good. Thank you. Thank you. It was just in 1 minute, Dr. Niranjan, I will summarize. Like it's very challenging in Afghanistan. जैसा कि इसमत साहब ने बताया कि अफगानिस्तान में काफ़ी चुनौती भरा है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में दखल जो है सरकार का बहुत कम है। तो उन इलाकों में भी हम लोग काम करते हैं, और वहाँ पे जो वॉरलॉर्ड्स हैं, ट्रेडिशनल वॉरलॉर्ड्स हैं या वो हैं, तो उनके आगे कोई एसएमसी में ये नहीं, उनको चैलेंज नहीं करता है कि अच्छा मैं इसको लीड करूँगा। और जैसे ही कमांडर्स बदलते हैं, कोई कमांडर आता है वो लड़कियों को कहता है अच्छा स्कूल जा सकती हैं, कोई नया कमांडर आ जाता है वो कहता है कि स्कूल नहीं जा सकती हैं, एंड देन
हम लोगों को पूरा महीने 2 महीने 3 महीने लग जाता है वो निगोशिएशन कराने में थ्रू कम्युनिटी। तो वो सारे चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग लड़कियों के लिए केवल यही नहीं और बल्कि मिनिस्ट्रियल हाइजीन का भी कार्यक्रम चलाने की हम लोगों ने हिम्मत की और वो चल रहा है और काफ़ी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उसके बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस्मत साहब, आपका प्रश्न। Thank you very much for all the speakers, particularly bringing a range of issues. I think probably this paves way for the next technical sessions. I think this is very important. This is very important, and one common thing that SDMC or SMC is a very crucial vehicle for the changes that what we are talking about. If you are really, kind of talking about a very, well-established public education, probably SMCs will be the best vehicle to achieve that both politically as well as, socially. I think that is very, very important. Honorable speakers have raised number of issues. I don't want to get into those issues because of the time constraint. I just want, to raise couple of issues in relation to SMC. I think one of the very big challenge before us is to create a kind of a massive awareness. After 7 years of implementing the RTE, majority of the members are not even aware about the core provisions of what is there in the legislation, particularly section 21 and 22. When we talk about section 21, it is more of, what really the roles and responsibilities, and section 22 is about development of school development plan. What is really missing is the very important thing that we need to address. How do we create that kind of an awareness to tell them that it is a legal sanction from the national legislation? This is not, something, a kind of, charity from the state, but this is a legal sanction from the national, legislation. So how do we create that kind of awareness is one of the very challenging issue that we need to address. The second important thing is, how do we constitute these committees in a more democratic and transparent way? In many schools, we are constituting these committees just because of the namesake. And just because, whether we like the president or the vice president, it is not basically to empower them to take the responsibility. In fact, Priyank was telling that, SMCs have not given kind of a status. If you look at the definition of the act, SMCs have given the local authority statute. They are the local authority. In fact, the committee which has complete control over the school is considered as local authority. It is as good as the further decentralization of the Panchayat Raj institution. I think they have all the facilities. Further, in section 23, they are the first redressal, authority for school teachers. If school teachers have any grievances, the first redressal authority is the SMC. So therefore, what I just want to say, it is very important to constitute these committees in a more democratic, transparent way to get right people. Otherwise, it is very difficult for us to move forward. Number 3, again very important, the capacity building process. Unfortunately, what is happening in the country now, after Sarva Shiksha Abhiyan, kind of stopped, there is no resources for building capacities of the SMC members. So how do we make the state to allot resources for capacity building? So they have been doing only, kind of capacities only for 2 members, either the president of the committee or the vice president. But in many schools, there are about 10 to 13 members. Unless you build their capacity, again, the whole issue of conducting the monthly meetings, in the monthly meetings, kind of raising the systemic agenda of whether it is out of school children, whether it is the learning, which is very, very crucial for us. Again, the whole issue of financial management, and particularly putting the centrality of the entire legislation, that how we gradually move towards making the government school a neighborhood school. All these issues need to be discussed in the meeting.
But unless you build their capacities, again it's an important, so how do we address is again thing that we need to address today. Then another important thing is the resources for SMC. What is that we are giving for the SMC? We are giving 5,000 grant for LPS, that is lower primary school, and 7,500 for HPS. Can we imagine like using 5,000 rupees for one academic year? What kind of school development or what kind of building the full strength of the entire thing? How they can do that? So therefore, I think probably we have raised an important issue in the recent convention in the Karnataka. We have asked, please provide at least 1 lakh school grant for the lower primary school and a 1.5 lakh for HPS. This is very important because one of the biggest problems that we are facing in government schools is the infrastructure. Even, if you look at the, kind of numbers, I have no data for other states, but in Karnataka, in the last 7 years, after the implementation of the Right to Education Act, the classrooms which requires major repair has raised from 63,000 rooms to 73,000 rooms. So how can you expect, to do a major repair unless you give substantial money for SMCs? So therefore, I think probably we have to raise the issue of spending more money for government schools and more grants should be given to SMCs. And one such thing is, in Karnataka alone in the last 7 years, 1,400 crores have been given to the private school in the name of reimbursement. I think that money should come to the SMCs. And private schools have a social obligation to do that because they are getting lot of concessions and they have established their schools under societies and trusts, not under the Companies Act. If their motto is profit, let them establish their schools under the Companies Act and let them give the account. I think probably we have to raise the more issues. And the last is the coordination. What is the coordination between the SMC at the school level vis-a-vis with the Panchayat Raj institution at the Panchayat level vis-a-vis, the authority like BEO, Block Education Officer, Block Resource Center and diets at the district level. Unfortunately, none of these, academic bodies right from SCRT, DIET, BRC and CRC, they are not giving any cooperation to the SMCs for strengthening the quality of education, which is centrality to the whole, implementation of the Right to Education Act. So therefore, that linkage is very, very important. I think we have to demand there should be a representation. I request particularly friends from the All India Primary School Teachers Federation, you have to join hands with SMCs across the nation. And I just want to make a statement, if it is not exaggeration. If at all, if government schools are surviving today, it is because of the SMC member, because they are the one who are sending their children to the government schools. It is just because of them. Without SMCs, it is impossible to save our government schools. None of us, including many teachers and upper middle class, we have escaped from government schools. They are the one who are sending the children to the government schools, and they have a primary stake. They have a primary stake and asking for all resources, all support system to strengthen the government schools. Therefore, it's very important for us to discuss these issues. Number of issues have been raised. Out of school children, how do we really make school more secure and child friendly? How do we address the issue of corporal punishment and the increasing kind of violence, particularly the sexual violence on the small children? Imagine 3-year, 4-year girls have been sexually harassed. I think this is a very serious concern. Where is the security for children in schools? So I think probably safe and secure school is an important step towards ensuring quality education. I think probably we have to discuss all these issues. This is very important, and probably if necessary, again I request All India Primary Teachers Federation to draw the attention. But Professor Mutkund Jubeji has raised this issue. In the last 3 years, either the Prime Minister nor the financial ministers have even mentioned about the Right to Education Act in their budget document. It is a shame. It is a shame because this is such an important social legislation.
When the legislation was brought into the force on 1st of April 2010, the then, Prime Minister addressed the nation. But after that, if you are not even mentioning about this legislation in your budget documents or in your things, I think probably it is completely neglected. So therefore, if necessary, we have to call, one-day call for the entire nation to close down the government schools, to draw the attention of the Prime Minister as well as the Finance Minister to say that we need effective and meaningful implementation of the Right to Education Act. Probably this convention will take a call on that, whether we can pass a resolution to request the Teachers Union and the members of the SMC to close down the government schools for one day to draw the attention of the entire nation. So therefore, I again thank Amrish and his team members for organizing this important convention. I think we must make it as a annual event every year. This is very important to send a very powerful message to the nation that the stakeholders have a very important role to build this nation. With this, I thank them for giving me opportunity to chair this inaugural session. Thank you very much, and I also apologize for taking little bit more time beyond the schedule. Thank you very much, and thanks to all wonderful speakers for bringing the range of issues. Thank you very much. It is something beyond thanks, Niranjan, but let me translate a little bit before leaving the stage. The bullet points, just what he shared. जो इन्होंने अभी कहा है, हम लोग के साथ जो शेयर किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ चैलेंजेज और इशूज हैं जो निरंजन ने हमें ध्यान दिलाया. एक तो है क्या कि ये शिक्षा का अधिकार है, लीगल कानूनी अधिकार है, ये चैरिटी नहीं है. दूसरी बात इन्होंने ज़रूरी कही थी कि ये डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और उसमें उनकी सहभागिता बढ़े. जो तीसरी बात कही वो कही कि इसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना है ये पूरे एसएमसी के इलेक्शन में, और इसमें ये ट्रांसपेरेंट होना है जब भी ये हो, और ऐसे कई इशूज उठ रहे हैं, इसके खिलाफ शिकायत भी आ रही है. जो चौथी बात कही आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि 93.36% एसएमसी गठन हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कई मेंबर को यह भी नहीं पता कि वो मेंबर हैं. तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है. जो पांचवी बात थी कि आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए. जो छठी बात है वो है क्या कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है एसएमसी के, इसको बढ़ाना होगा. और एक कर्नाटका उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि आप अपना हक मांगते हो तो आपको मिलता है. जो सातवीं बात थी, बड़ी ज़रूरी थी, कि प्राइवेट स्कूल का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर प्राइवेट स्कूल इसी तरह से बढ़ते रहें किसी कंपनी की तरह तो उसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत लाया जाए. 2013 का कंपनी एक्ट कहता है कि उनको अब चैरिटी अलग ढंग से करनी होगी, जो इशारा कर रहे थे. जो आठवीं बात थी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है. एसएमसी, पीआरआई, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पंचायती संस्थाएं हैं, जो शिक्षा के अलग अलग निकाय हैं, अंग हैं, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ ये कोऑर्डिनेशन बढ़े. और एक और ज़रूरी बात थी कि जो स्कूलों में घटनाएं बढ़ रही हैं बच्चों के साथ, उनके असुरक्षित होने का जितनी घटनाएं अभी हम देख रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, इस पे काम करना ज़रूरी है. और उन्होंने एक अपील की कि ये मंच है और यहाँ से हम सभी तैयार हों कि एक दिन के लिए पूरे भारत भर में सारे स्कूल बंद हों और सरकार को ये घोषणा मिले, ये उनको आवाज़ जाए कि कैसे एसएमसी को और प्रभावी और सही ढंग से स्कूल मिल सके. थैंक यू वेरी मच. इट इज समथिंग बियॉन्ड थैंक्स, निरंजन. थैंक यू वेरी मच. आइए मैं अब आपको कहूं कि इस पूरे आज के जो एक दिवसीय एक ग्रुप फोटो है, प्लीज. अम्बरीश जी कहाँ हैं? इस समय कम है, आप 1 मिनट मैक्सिमम लीजिए. थैंक यू वेरी मच. साथियों, ये सत्र अब एक दूसरे तरह का टर्न लेने जा रहा है, जहां यहां फैसिलिटेटर्स होंगे, यहां स्पीकर्स नहीं होंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्त जितनी तेजी से भाग रहा है और जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी है, उसके लिए जरूरी है कि हम यहां से सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे और आप सभी स्पीकर होंगे. याद रखेंगे कि हम वो सारी प्रासंगिक बातें अलग अलग हिस्सों में बात कर रहे होते हैं. आपसे मैंने पहले ही शेयर किया
मैं गुजारिश करूंगा कि इस सत्र के जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं वो यहां आए। प्रोफेसर AK सिंह नीपा से प्लीज आए सर। ये मिस्टर रघु तिवारी RTE फोरम उत्तराखंड से, डॉक्टर भरत सिंह RTE फोरम दिल्ली से और रितु मेहरा RTE फोरम दिल्ली से, प्लीज आए यहां। और आपसे गुजारिश है, चूंकि वक्त भाग गया है और ऐसे कई सत्र लगातार 6 सत्र ऐसे होने वाले हैं जिसमें आपकी आवाज आएगी, आपकी बातें होंगी। सिर्फ मैं इस 45 मिनट के सत्र को 30 मिनट में करने की गुजारिश करता हूं जो फैसिलिटेटर्स हैं। हाँ, और ये बड़ा जरूरी होगा इस सत्र में क्योंकि हम चीजें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये बाद में हम शेयर भी करेंगे जो कंसर्न लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि एक तो ये आधा घंटा में संपादित करने की जिम्मेवारी आप लोगों पे है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे 6 सत्र और हैं जिसमें ये हमसे बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि आप जब भी जो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स अपनी बात कहने जा रहे हैं वो अपना नाम और अपना क्षेत्र का नाम जरूर बताएंगे जब कहेंगे तो। और इस सत्र जिसे हमने बांधा है यह कहकर कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और उनका क्षमता वर्धन, इस पे ओवर टू you all, it's your turn all, please, so you start. और माइक लेके तैयार रहेंगे, जो जहां से लोग अपनी बात कहना चाहेंगे वहां तुरंत वो माइक लेके जाएंगे। मैं 2 वॉलेंटियर्स चाह रहा हूं जो 2 माइक लेके प्लीज रेडी रहेंगे जिससे समय बिल्कुल और नहीं लगे। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। आप सभी को इस प्रांगण में शिक्षा के अधिकार का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें स्वागत है। इससे अगले सत्र में बहुत सारी चर्चाएं हुई जिसका आप प्रारूप देख चुके हैं। समस्याएं इस शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत हैं, लेकिन ये समस्याएं का समाधान होना भी जरूरी है। ये प्रयास जो RTE फोरम ने किया है, गांव-गांव से, स्कूल से उनको राष्ट्रीय स्तर पे ला करके वहाँ की बातों को समझने के लिए ये कार्यक्रम चल रहे, इसलिए आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचनी जरूरी है। हम बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत समय, बहुत वर्षों तक आपकी आवाज़ नहीं बन सकते। आपकी आवाज़ आपको खुद बननी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय प्रबंधन समिति जो है, इसे कहा जाता है ग्रास विदाउट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर विदाउट ग्रास, क्या कहा जाए, ग्रास विदाउट रूट्स। इसलिए कि इसके रूट्स को जमने नहीं दिया जाता। ये घास ऐसा है जिसका जड़ ही जमीन में नहीं जुड़ा हुआ है और ये बनाया गया इस ढंग से है कि इसके जड़ के जमीन को जमीन से जोड़ने की जो भी प्रक्रिया होती है उसका एक सरकारीकरण के दौर के तहत कहीं ना कहीं वो व्यवधान आ जाता है कि ये एक सरकारी प्रोग्राम जैसा लगता है। राइट टू एजुकेशन कोई प्रोग्राम नहीं है, एक मुहिम है जिसमें कोई भी बच्चा अकेला कहीं भी हो उसे शिक्षा का अधिकार है। ये अधिकार एक बच्चे को दिया गया, कोई समूह को नहीं। और हमें निश्चित करना है कि वो अधिकार जो है उस बच्चे को मिले। कैसे? ऐसे वर्ग के लोग, आप जानते हैं कि जो स्कूल में ऐसे वर्ग के लोग सरकारी स्कूल में बच गए हैं जो काफ़ी, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वे उतने शिक्षित भी नहीं हैं। और इस समिति के अंतर्गत उसमें 75% ऐसे मेंबर जो हैं इसी सदस्य, इसी ग्रुप से आते हैं। और उसमें महिलाओं का आधा उसमें परसेंटेज रखा गया है। इन चीज़ों को देखते हुए ये कैसे इन सब को, ताकि ये ना लगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसमें कोई गांव में जाए तो उसको पता ना हो, जो मेंबर है सदस्य उसको पता नहीं है। मैंने 14 राज्य में एक अध्ययन किया था, कर्नाटका भी था, मेरे साथ प्रोफेसर निरंजन आराध्या थे उसमें कर्नाटका की तरफ से,
और सारे जगहों में हमने देखा ये राइट टू एजुकेशन के पहले का अध्ययन था कि वहाँ की क्या स्थिति थी और अभी क्या है। तो है क्या कि जो इस प्रबंधन समिति के पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पावर्स कम है। हम चाहते हैं कि जो कोई भी लोग आप अपने जिस किसी राज्य से, जिस किसी विद्यालय से, जिस किसी गांव से आए हैं, अपनी समस्याओं को आप बताएं और अपने ऐसे कोई प्रयास जो कि आप राष्ट्रीय स्तर पे बताना चाहते हो, ताकि ये आवाज़ जो है यहाँ से जो उठेगी तो दूर तक जाएगी, सबके पास जाएगी जो शिक्षा के संबंध में तो ये जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे जो इसमें हैं, जिनको जो ये कह सकते हैं, जो अपनी आवाज़ को बता सकते हैं कि उन्होंने अपने विद्यालय समिति में, विद्यालय प्रबंधन समिति के रूप में क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं जो, और क्या क्या ऐसी समस्या है जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उगाना चाहिए। तो हम इससे पहले कि हम कोई अपने हमारे जो ये वक्ता हैं उनको कहें, इससे पहले हम चाहेंगे कि एक दो आवाज़ हमारे उन भाइयों से, जो बहनों से जो आए हैं देश के दूर दूर भागों से, वो अपने बारे में बताएं। और आपके बगल में हैं, प्लीज़ अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं। ये ये रोल और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करें। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टीचर लोग का यूनिट था, अभी जब सर्व शिक्षा आया तो 30 बच्चा में एक टीचर दिया जा रहा है, उसी में हम लोग प्रश्न है, क्योंकि 1 से 5 क्लास तक अगर है 30 ही बच्चा है तो एक ही टीचर मिलेगा। इसमें हम लोग काबू है, तो इसका विषय में क्या समाधान किया जाएगा और होगा, इसको थोड़ा सा मुझे बता देगा, कृपा करके। सभी साथियों को नमस्ते। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूं, जहां जौनपुर एक बहुत बड़ा 21 ब्लॉक और 6 तहसीलों से बहुत बड़ा अपने में खुद जिला है। साथियों, जौनपुर की स्थिति ये है कि जो ये एसएमसी गठन किए गए हैं, अधिकांशों को तो ये पता ही नहीं है कि हम मेंबर हैं। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग उपस्थिति है, वहाँ पे कुछ पहल हुए हैं कुछ विद्यालयों में, जैसे पुस्तक अभी नवंबर तक आ रही है। 4 दीवारी अभी वहाँ के डीएम ने पर्सनल पंचायतों को एक शासनादेश, एक चिट्ठी जारी कर दिया कि आप 4 दीवारी जरूर बनाओगे, विद्यालय में शौचालय जरूर बनाओगे और वहाँ पे फर्श जरूर बनाओगे और वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था जरूर करोगे। तो वहाँ के जिला कलेक्टर ने इस तरह का एक प्रयास किया, इसमें पूरे जौनपुर जनपद में विद्यालय में 4 दीवारी बनी। कुछ एसएमसी के जो प्रयास है, जो दबाव बनाए गए, उसमें शक किया, सवाल किया और बवाल किया कि तर्ज पर जो लोगों ने अपना प्रयास किया उससे कुछ सफलता मिली है। जनप्रतिनिधियों की स्थिति यह है कि वो प्राइवेट विद्यालयों को खूब फंड देते हैं और सरकारी स्कूल को नहीं फंड देते। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जहाँ पे बनारस में जीत के आए हैं, यहीं के विधायक से मिलकर हम लोगों ने लेटर जारी अभी करवाया, जन दबाव बनाकर उन्होंने प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूल को फंड देने की बात चिट्ठी जारी कर दिया है। ये प्रयास है। सभी को जय। अरे करिए ना। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं सेव द चिल्ड्रन संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजस्थान से आता हूँ। मुझे लगता है कि शिक्षा में सामुदायिक की भागीदारी की बात बहुत नई नहीं है, और जो कि अमरीश जी कह रहे थे, जिस कोठारी आयोग का हवाला वो दे रहे थे, शायद उसी में ही इस बात को बहुत ही पुख्ता तरीके से रखा गया है कि शिक्षा या स्कूल एक सामाजिक संस्था है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल की ही जिम्मेदारी समाज के प्रति है, समाज की जिम्मेदारियां भी हैं स्कूल के प्रति, और स्कूल में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये समाज को सुनिश्चित करना है। इसी प्रयास में मुझे लगता है कि जब शिक्षा का विषय जब समवर्ती सूची में आया तो शायद सरकार ने अपनी ये मंशा जाहिर कर दी थी
कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस चाहते हैं एजुकेशन में, और इसी क्रम में सेव द चिल्ड्रन एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी एसएमसी के को लेकर बहुत ज़रूरी काम कर रहा है। हमारा एक स्ट्रैटेजिक इंडिकेटर भी है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्कूल में एसएमसी कितनी एक्टिव है और उसको एक्टिव बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। मैं राजस्थान से कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहूँगा जो सेव द चिल्ड्रन जो राजस्थान में सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो सेव द चिल्ड्रन राजस्थान में सरकार के साथ 3 स्तरों पर काम कर रहा है, जहाँ पर एक है पॉलिसी लेवल स्ट्रेंथनिंग और स्टेक होल्डर्स के साथ। तो वहाँ सरकार के साथ मिलकर हमने एक एसएमसी का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है 2 दिवसीय, जिसके आधार पर हमने लगभग 300 आरपीस की ट्रेनिंग की है और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस कुछ ही स्कूलों के स्तर पर भी हमने इस एसएमसीज के साथ काम किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास जिसमें बात की जा सकती है जो हमने एसएमसीज के साथ किया, चाहे वो स्कूल में से ट्रांसफार्मर को हटाना हो, स्कूल के लिए प्ले ग्राउंड्स की ज़मीन को एलोकेट करना हो। तो इस तरीके के कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं। सर मेरा नाम ओम प्रकाश मीना है। बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट चाहेंगे कि ज़्यादातर जो विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य आए हैं उसकी आवाज़ ज़्यादा आए। कार्यकर्ता जो ऑर्गेनाइजेशन इससे हैं तो वो, चूँकि ये मौका हम लोग को ये मिलना का अवसर है, सुनहरा अवसर है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा उनकी आवाज़ आए ताकि जो विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं वो अपनी बातें कहें, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रेजेंटेशन है हमारे पास और बीच में के सत्र में भी होगा, लेकिन इस सत्र में हम कम से कम ज़्यादा हम चाहते हैं कि जो आवाज़ जो आए सो वो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य से आए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश मीना है, मैं एडीपीएसएस की तरफ से हूँ और स्कूल प्रिंसिपल हूँ। सर जो अभी हम एसएमसी का जो दिल्ली में प्रचलन चल रहा है उसमें है कि हमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, पर इसका जो मेजर पार्ट है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, उसको आज दिल्ली की राजधानी और भारत की राजधानी दिल्ली में ही लागू नहीं किया गया है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, एमसीडी स्कूल में, इवन एनडीएमसी और पब्लिक स्कूल्स में तो इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है। तो इस पे गौर क्यों नहीं किया गया अभी तक? देश की राजधानी में जब स्कूल डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो बाकी स्टेट्स में हम इसकी कैसे उम्मीद कर सकते हैं? थैंक यू सर। सर मैं प्रिंसिपल हूँ और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में मैं चेयरमैन की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और साथ में टीचर्स अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ में दिल्ली लेवल पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी हूँ। जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं एसएमसी के साथ या टीचर्स के साथ वो मैं आपके से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अभी सुबह से हम लोग यहाँ पर कई आरटी एक्ट और एसएमसी के बारे में हम काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हमारे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा, दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं क्योंकि हमारे दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स हैं फैसिलिटीज़ हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो अदर स्टेट से जो आए हुए हैं, हमारे यहाँ एक तो जो रेशो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स का, वो रेशो बिल्कुल भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ही नहीं मानता। वो आरटी एक्ट को उठा के अलग रख देता है, कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स का स्टेटमेंट है, वो इसको नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी वैकेंसी बढ़ती है टीचर्स की और वो कहते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैकेंसी को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। वो डिवाइड करते हैं स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स को 40 से डिवाइड करके वैकेंसी निकालते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि स्कूल के अंदर यदि 1000 स्टूडेंट्स हैं उसमें एक सेक्शन के अंदर 30 to 40 स्टूडेंट्स होना चाहिए। सेक्शन वाइज उसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरे, जो हमारे एसएमसी के मेंबर्स आ रहे हैं वो पॉलिटिकल क्योंकि एक तो उनको नॉलेज नहीं है कि हमारी पावर्स क्या है, दूसरा वो पॉलिटिकल जो हमारे दिल्ली के अंदर कुछ ज़्यादा है ये कि वो पॉलिटिकल होकर वो अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़कर वो वहाँ पर राजनीति करते हैं। वो भी एक तो हमारे समाज को सोचना चाहिए कि समाज से ही स्कूल बनता है। तो एक तो ये 2 चीज़ का हमारे को स्कूल के अंदर, दिल्ली के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपके सामने रखी हैं। वैसे तो बहुत है लेकिन आधे घंटे के अंदर सर ने बोला है तो उसको मैनेज करने के लिए थैंक यू। हेलो, आवाज़ आप संक्षिप्त में बोले। अपना नाम
नाम बताएं और अपना। नमस्ते, मेरा नाम राम सिंह, मैं सेव द चिल्ड्रन में काम करता हूँ।